Hello and welcome everyone, myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 15, study note number 4. Today we will solve illustration number 7. Dandelion Limited follows JIT system. It had following transactions in May 2015. So first of all, raw material purchase, that is 2 lakh. Direct labor cost incurred 36,000. Actual overhead cost is 3 lakhs. Conversion cost applied, that is 3,16,000. All materials that were purchased were placed into the production. ओके, सो बेसिकली इधर अगर जेट सिस्टम है तो जो भी रॉ मटेरियल हम लोग परचेस करेंगे वो डायरेक्टली जाएगा प्रोडक्शन में. सो इधर कुछ भी हम लोग स्टोर नहीं करते. ओके, सो वही इधर बताया है. सो डायरेक्टली ऑल द मटेरियल्स विल गो डायरेक्टली टू द प्रोडक्शन. सो देयर विल बी नो स्टॉक ऑफ मटेरियल. Okay, and production was also completed and the sold during the month. Okay, the difference between actual and applied cost is computed. Okay, see, ये तो हम लोग को इधर ही क्वेश्चन में ही समझेगा. सी, अप्लाइड कॉस्ट कितना है 3,16,000. ओके, और जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड हुआ है वो हम लोग को इधर ही मिला है. ओके, हम लोग को कितना एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड हुआ है. सी, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट दैट इज 3 लाख एंड डायरेक्ट लेबर इज 36,000. So total is 3,36,000. ओके, एक्चुअल कॉस्ट और अप्लाइड कितना किया है 3,16,000. सो जो भी 20,000 का डिफरेंस है वो हम लोग को इधर शो करना पड़ेगा एंट्री में. क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू pass both, that is traditional journal entry also and backflush journal entry also. Okay, so we have to pass journal entry in two ways, that is traditional also and backflush also. First of all, traditional is very easy because we have studied in the inter that how to pass this kind of journal entries, that is in cost control ledger topic. So we'll basically record the first part, that is traditional journal entry. First of all, we have to understand what is traditional system. Okay, in traditional system, first step is purchase of raw material, then that raw material goes to the WIP. There is a process takes place, and after WIP it is converted into finished goods. Okay, and after finished goods that is ready to sell, so it goes to the cost of goods sold and then sales. Okay, but sales information is not given in the question. We will just pass entry up to cost of goods sold. So for traditional part, we have to follow the steps, that is raw material, then WIP, then finished goods, then cost of goods sold. Okay, if you are properly get this part, then only you can understand properly that backflush accounting entries. Okay, so first of all, we have to concentrate on traditional system. Okay, first transaction is raw material were purchased. That's very simple. Raw material is purchased, so raw material is coming in, so material account debit to account payables. This is the first entry. Okay, so we'll just pass material. This is the traditional part. Materials account debit to account payables. Okay, to account payables. Amount is 2 lakh. Amount is 2 lakh. Okay, being it is very simple, which is given in the question. We have to just write that narration. Being raw materials were purchased. Okay, so we have completed first entry. Now this raw material, okay, this raw material will go to the production. It means it will go to the WIP. ये जो रॉ मटेरियल परचेस किया है वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा या फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, किधर, WIP में जाएगा. ओके, सो WIP में जाएगा, सो WIP डेबिट हो जाएगा. WIP अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल इज गोइंग आउट, सो टू मटेरियल्स अकाउंट. ओके, तो इधर हम लोग का मटेरियल अकाउंट क्लोज हो जाएगा क्योंकि अर्लियर वो डेबिट हुआ था और अभी वो क्रेडिट हो चुका है, सो मटेरियल अकाउंट क्लोज हो गया. बीइंग materials issued to प्रोडक्शन. मटेरियल जो भी था वो प्रोडक्शन के लिए हम लोग ने इशू किया है. ओके, नेक्स्ट
अभी मटेरियल का ये जो पार्ट है वो तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट लेबर इनकर। सो डायरेक्ट लेबर हम लोग का इनकर हुआ है। अभी डायरेक्ट लेबर हम लोग किस लिए करते हैं, हम लोग प्रोडक्शन के लिए करते हैं। सो ये भी सीधा जाएगा WIP में। ओके, चाहिए तो हम लोग एक एंट्री करके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू अकाउंट पेएबल, लेकिन वो करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। हम लोग को फोकस करना है ये जो रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये जो मेन स्टेप्स है उसके ऊपर। सो हम लोग डायरेक्टली ये जो डायरेक्ट लेबर है उसको भेजेंगे WIP में। सो WIP में जा रहा है डायरेक्ट लेबर या फिर डायरेक्ट वेजेस, तो WIP रिसीव करेगा। सो WIP में जा रहा है, सो WIP अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है, डायरेक्ट वेजेस। सो डायरेक्ट वेजेस या फिर डायरेक्ट लेबर वॉट एवर अकाउंट। ओके, कितना है 36,000। ओके, नरेशन इज बीइंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट incurred, direct labor cost incurred. Okay, so after direct labor, okay, we will read the next, that is actual overhead cost, that is 3 लाख। सो एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट हम लोग का कितना हुआ, 3 लाख। सो ये इसका हम लोग को एंट्री करना है कि हम लोग का एक्चुअल ओवरहेड इतना इतना इनकर हुआ है। सो एंट्री फॉर दैट, सी ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ओके, टू अकाउंट पेएबल्स, क्योंकि वो भी पे करना पड़ेगा, अकाउंट पेएबल्स, दैट इज कितना हुआ हम लोग का ओवरहेड 3 लाख। ओके, बीइंग ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड, बीइंग ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। ओके, सो इधर तक तो हम लोग का हो गया। अभी क्या है ना कि ये जो ओवरहेड हुआ है वो भी हम लोग को WIP में डालना पड़ेगा। ओके, वी हैव टू ट्रांसफर दिस ओवरहेड इनटू WIP फॉर प्रोडक्शन पर्पस। ओके, अभी WIP में डालेंगे तो एंट्री क्या आएगा, WIP अकाउंट डेबिट, ओके, WIP अकाउंट डेबिट टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, WIP अकाउंट डेबिट टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ओके, लेकिन ये जो 3 लाख है वो हम लोग पूरा का पूरा नहीं डाल सकते। ओके, 3 लाख हम लोग पूरा का पूरा नहीं डाल सकते बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस। सी द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड अप्लाइड कॉस्ट, ये जो डिफरेंस है इसकी वजह से हम लोग 3 लाख टोटली नहीं इनकर कर सकते या फिर टोटली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते WIP में। सी अभी तक हम लोग का जो कॉस्ट, सी इधर क्या बोला है कि कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाइड, मतलब इतना हम लोग का अप्लाइड हो चुका है 3,16,000। ओके, 3,16,000 हम लोग का इनकर्ड हो चुका है, लेकिन हम लोग का जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितना हुआ है, हम लोग का एक्चुअल कॉस्ट, सी ये जो 3 लाख है वो प्लस हम लोग का जो डायरेक्ट वेजेस है वो टोटल कॉस्ट कितना हुआ है हम लोग का, मटेरियल को छोड़ के हम लोग सिर्फ ओवरहेड देख रहे हैं। सो 3 लाख का ओवरहेड प्लस वेजेस दैट इज 36,000। सो इतना कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड हुआ है, लेकिन अप्लाइड कितना हुआ है, दैट इज 3,16,000 विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। सो डिफरेंस इज 20,000। ओके, सो डिफरेंस इज 20,000। वो डिफरेंस माइनस करके हम लोग को इधर WIP में ओवरहेड पुट करना है। सो 3 लाख minus that 20,000 difference, so amount is 2,80,000, amount is 2,80,000। बाद में मैं आपको WIP का एक छोटा सा रफ में एक लेजर प्रिपेयर करके आपको ये शो करूँगी कैसे हुआ है। ओके, फिलहाल आप लोग ये एंट्री ध्यान में रखो कि अमाउंट कैसे आया। ओके, तो ये एंट्री हम लोग का हो गया। ओके, बीइंग application of overhead, being application of overhead। ओके, अभी इधर हम लोग का WIP का प्रोसेस हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल हम लोग ने WIP में डाला, फिर अभी WIP में सब हो गया। अभी WIP का जो भी रहेगा प्रोडक्शन का जो पार्ट वो कन्वर्ट होगा फिनिश गुड्स में। तो अभी हमारे पास क्या आएगा, अभी हमारे पास फिनिश गुड्स आएगा।
सो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू, किधर से बनता है फिनिश गुड्स, WIP में से, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP, ओके, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP, ऐसा हम लोग का एंट्री आएगा, ओके। सो अभी फिनिश गुड्स हम लोग का बना, तो कन्वर्जन कॉस्ट कितना आया, 3,16,000, राइट, इतना हम लोग का कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाइड हुआ है, प्लस हम लोग का मटेरियल, ओके, प्लस हम लोग का मटेरियल, तो टोटल फिनिश गुड्स का कॉस्ट कितना आएगा, 5,16,000। सो फिनिश गुड्स कितना आया, 5,16,000, 5,16,000, ओके। नरेशन बीइंग completion of goods, so इधर हम लोग का फिनिश गुड्स बन के रेडी हो चुका है। अभी फिनिश गुड्स होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके। सो फिनिश गुड्स का जो भी अमाउंट है वो हम लोग को ट्रांसफ़र करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट टू, किधर से आया, फिनिश गुड्स से, टू फिनिश गुड्स अकाउंट, जितना अमाउंट है वो पूरा ट्रांसफ़र करेंगे, 5,16,000, सो वी आर ट्रांसफरिंग द एंटायर अमाउंट, दैट इज 5,16,000। नरेशन बीइंग कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड इज ट्रांसफर्ड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, ओके। सो हम लोग ने बेसिकली जो कॉस्ट है फिनिश गुड्स का जो हम लोग ने सेल करने के लिए दिया है वो ट्रांसफ़र किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, ठीक है। अभी लास्ट एंट्री वो जो 20,000 का डिफरेंस आया था उसकी, ओके। सो 20,000 का डिफरेंस आया था वो हम लोग एक बार चेक करेंगे कि कैसे आया है वो डिफरेंस, ओके। उससे पहले अगर किसी को इसमें डाउट है तो हम लोग वो क्लियर करेंगे। सिंपली हम लोग एक रफ में WIP अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आंसर, सो वी आर जस्ट ड्राइंग रफली, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल WIP में एंट्रीज करेंगे, सी इधर तो WIP है नहीं, इधर WIP अकाउंट डेबिट टू मटेरियल्स, तो WIP अकाउंट डेबिट टू मटेरियल्स 2 lakhs मटेरियल्स, ओके, 2 lakhs। नेक्स्ट है WIP टू डायरेक्ट वेजेस 36,000, सो टू डायरेक्ट वेजेस 36,000, ओके। उसके बाद क्या एंट्री आया था, WIP अकाउंट डेबिट टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ओके। और इधर फिनिश गुड्स टू WIP, ओके। सो फिनिश गुड्स टू WIP, सो ये साइड में आएगा ना फिनिश गुड्स बाय फिनिश गुड्स अकाउंट, कितना आया था, 5,16,000, ओके, 5,16,000। सो 5,16,000 हम लोग का क्रेडिट में है और डेबिट में है 2 लाख और 36,000, ओके। सो अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि ये एंट्री कैसे आई, मतलब WIP अकाउंट डेबिट टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, सो इधर हम लोग बैलेंसिंग करके उसको चेक कर सकते, क्योंकि इसके बाद किधर भी WIP नहीं है, सिर्फ 1, 2, 3, 4 ही एंट्री में, ओके। सो इन तीनों का पोस्टिंग हम लोग ने किया, ये कैसे आएगा वो बैलेंसिंग फिगर से समझेगा, ओके। सो दिस इज द WIP अकाउंट, दिस इज द फिनिश गुड्स, इट मीन्स वी हैव प्रोड्यूस फिनिश गुड्स ऑफ 5,16,000, ओके, 5,16,000 using, see, 5,16,000 finished goods are produced using material of 2 lakhs and wages of 36,000, okay. Balancing figure is overheads, so that's why here it will come overhead control account. I hope अभी आपको सबको 2,80,000 कैसे आया वो समझ में आया होगा, ओके। इसीलिए ये WIP अकाउंट डेबिट टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ऐसे 2,80,000 का एंट्री इधर आ रहा है, ओके। अभी WIP का कन्फ्यूजन खत्म हो गया, रॉ मटेरियल तो इजी था, WIP हो गया, उसके बाद फिनिश गुड्स भी इजी है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी इजी है। फाइनली वो जो 20,000 का डिफरेंस है उसका एंट्री हम लोग को करना है, ओके। वो भी चाहिए तो एक अकाउंट प्रिपेयर करके देखते हैं, सी
ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, इसका प्रॉब्लम है। ओके, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, इसमें भी हम लोग बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, गलती नहीं होगी। ओके, सो विल जस्ट प्रिपेयर दिस अकाउंट सो दैट विल अवॉइड द मिस्टेक। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट किधर किधर दिख रहा है, सी इधर दिख रहा है, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू अकाउंट पेएबल। सो टू अकाउंट पेएबल्स कितना पे किया था हम लोग ने, 3 lakhs। ओके, उसके बाद ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट इधर दिख रहा है WIP में, सो WIP वो साइड जाएगा, WIP अकाउंट डेबिट टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 2,80,000। ओके, अभी और किधर भी हम लोग को ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट नहीं दिख रहा है, वी आर नॉट गेटिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट इन द नेक्स्ट एंट्रीज, सो विल जस्ट बैलेंस इट, क्लोज दिस अकाउंट, बैलेंस इज 20,000, बैलेंस इज 20,000। अभी जो लास्ट अकाउंट हम लोग का आ रहा है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो ये जो डिफरेंस है हम लोग को डालना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। ओके, सो बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, सो एंट्री क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट टू ओवरहेड। सो लास्ट एंट्री हम लोग का ट्रेडिशनल सिस्टम में आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट टू सी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। सो ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कितना है अमाउंट, हम लोग ने देखा है 20,000, जो डिफरेंस है वही हम लोग को डालना है। सो डिफरेंस इज 20,000। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट डिफरेंट है, अप्लाइड कॉस्ट डिफरेंट है, दैट्स वाई ये डिफरेंस आ रहा है। सो बीइंग वैरिएंस इज रिकॉग्नाइज्ड, वैरिएंस डिफरेंस है ना, सो वैरिएंस इज recognized. Okay, so here we have completed traditional journal entry in the books of that company. So traditional journal entry हम लोग का हो चुका है। अभी हम लोग को जाना है बैक फ्लश अकाउंटिंग एंट्रीज में। सो बैक फ्लश में एक गोल्डन रूल क्या होता है कि बैक फ्लश अकाउंटिंग सिस्टम ये जिट के साथ चलता है, तो इसमें WIP का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, तो WIP नहीं आएगा, डायरेक्टली उसका जो कन्वर्जन का कॉस्ट है और वो सब बाकी के एंट्रीज है वो आ जाएंगे। ओके, सो इधर रॉ मटेरियल स्टोर में जाता नहीं है, डायरेक्टली वो प्रोसेस में जाता है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में चला जाता है। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग एंट्रीज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल परचेज दैट इज़ 2 lakh। ओके, सो बेसिकली हम लोग का एंट्री कैसे आता है कि रॉ मटेरियल हम लोग स्टोर में भेजते हैं तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ऐसे एक प्रॉपर एंट्री आता है हम लोग का जो कंट्रोल अकाउंट्स का टॉपिक है उसमें। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बैक फ्लश एंट्री कर रहे हैं। सो बैक फ्लश में डायरेक्टली प्रोडक्शन के प्रोसेस में जाता है। सो रॉ मटेरियल इन प्रोसेस अकाउंट ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट एंट्री सी we are doing backflush entries, so that's why raw material directly go to the production process, so that's why we are writing raw material in process account. Okay, so raw material in process account debit, okay, to account payables, वो तो सेम ही आएगा, account payables amount is given 2 lakhs, so we'll write 2 lakhs. Next narration being purchase of raw material, that is very simple, purchase of raw material. Okay, second, okay, now second entry, बेसिकली इधर क्या हुआ था, रॉ मटेरियल हम लोग ने पहले परचेस किया, उसके बाद उसको WIP में भेज दिया, ये सब किया था। लेकिन अभी हम लोग बैक फ्लश में है, तो बैक फ्लश में तो डायरेक्टली वो प्रोसेस में चला गया, राइट। अभी रॉ मटेरियल का कंप्लीट होने के बाद हम लोग गए थे WIP में, लेकिन बैक फ्लश में तो WIP होता ही नहीं है, सो डायरेक्टली हम लोग को जाना पड़ेगा कन्वर्जन कॉस्ट के ऊपर। ओके, सो here in traditional system earlier first of all we did entry of material purchase, then that material went to the WIP process, but now we are doing back flush accounting, so directly it will go to the process, so that's why we have written raw material in process. Okay, so here raw material step is completed. Now next is
In traditional there was a step of WIP or entries of WIP, but we are doing now backflush, so there is no concept of WIP. Directly we have to record conversion cost. Okay, so conversion cost we are recording. See, conversion cost account debit. ओके, कन्वर्जन कॉस्ट अकाउंट डेबिट. अभी कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाइड दिया है 3,16,000, लेकिन हम लोग को अप्लाइड नहीं देखना है, हम लोग को पहले एक्चुअल देखना है, बाद में हम लोग अप्लाइड के ऊपर जाएंगे. ओके, सो कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो एक्चुअल कितना है. एक्चुअल कन्वर्जन कॉस्ट इनकर्ड इज सी, एक्चुअल ओवरहेड 3 लाख एंड डायरेक्ट लेबर इज 36,000. So actual cost is 3,36,000. So we have to consider that. So conversion cost account 3,36,000. Okay. 2. इसमें क्या क्या है, इसमें है डायरेक्ट वेजेस अकाउंट, दैट इज 36,000. Okay, direct wages account, that is 36,000, and other is overhead. Okay, so overhead control account. Okay, we can write here account payable also, because see, ये जो ट्रेडिशनल एंट्री है उसमें हम लोग ने कैसे किया था, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करके अकाउंट पेएबल को क्रेडिट किया था, उसके बाद वो WIP में डाला था. तो डायरेक्टली हम लोग इसको WIP में डाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अकाउंट पेएबल लिखना ही है. ओके, so we can directly write here overhead control account also. okay, so conversion cost में क्या क्या है वो बेसिकली हम लोग को शो करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है डायरेक्ट वेजेस, उसमें 36,000 का, और उसमें क्या है ओवरहेड्स है. ओके, ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, कितना ओवरहेड्स है उसमें इनकर्ड किया हुआ ओवरहेड से 3 लाख. सो टोटल कॉस्ट कितना हुआ 3,36,000. सो 3 लाख. narration being, okay, narration is being overhead cost incurred. okay, overhead cost incurred. हम लोग का जो बुक का आंसर है उसमें उन्होंने इधर अकाउंट्स पेएबल लिखा है, सो डोंट कंफ्यूज ड्यू टू दैट. अकाउंट पेएबल लिखा तो भी सही है क्योंकि वो पे ही करना है, लेकिन हम लोग ने इधर शो किया कि एग्जैक्टली कौन सा कॉस्ट है उसमें, सो दैट्स वाई हम लोग ने इधर ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट लिखा है. नो प्रॉब्लम, कोई भी आपको चाहिए तो कैसे भी आप लिख सकते हो. ओके, सो ये इधर तक हम लोग का हो गया. अभी नेक्स्ट दैट इज थर्ड एंट्री. अभी कन्वर्जन वगैरह सब कुछ होने के बाद क्या बनता है, कन्वर्जन होने के बाद बनता है फिनिश गुड्स. ओके, सो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट. ओके, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट. सो ये जो फिनिश गुड्स है उसमें क्या क्या है, ये जो फिनिश गुड्स है मतलब ये फिनिश गुड्स बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या लगा, हम लोग को लगा मटेरियल. ओके, मटेरियल अकाउंट, कितने का मटेरियल लगा था 2 लाख का. ओके, और हम लोग ने कॉस्ट कितना अप्लाइड किया है, कन्वर्जन कॉस्ट हम लोग ने कितना अप्लाइड किया है. सी, कन्वर्जन कॉस्ट ये तो एक्चुअल है लेकिन हम लोग को अप्लाइड चाहिए तभी तो डिफरेंस समझेगा ना. सो हम लोग का जो अप्लाइड है, सी, कन्वर्जन कॉस्ट हम लोग का अप्लाइड कितना है 3,16,000. ओके, सो 3,16,000. सो टोटल हम लोग का फिनिश गुड्स कितने का बन गया 5,16,000. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. ये जो बुक का आंसर है इसमें कुछ मिस्टेक्स लग रहा है तो मैं हम लोग डिस्कस करेंगे उसको भी. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नरेशन लिखते हैं, being completion of goods. सो इधर हम लोग का बेसिकली फिनिश गुड्स बन के रेडी हो गया है. ओके, सो ये होने के बाद अभी नेक्स्ट एंट्री आएगा. अभी फिनिश गुड्स तो हो गया, फिनिश गुड्स होने के बाद तो सिंपल एंट्री हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स अकाउंट. कितना है जो है वो पूरा आएगा ना 5,16,000. सो विल डायरेक्टली रिकॉर्ड 5,16,000 बिकॉज वी आर जस्ट ट्रांसफरिंग, दिस इज ट्रांसफर एंट्री. being cost of finished goods sold, cost of finished goods sold is transferred. Okay,
So here we have recorded cost of goods sold entry. Okay, now last entry we have to record last entry, that is fifth entry. Okay, फिफ्थ एंट्री. सो इसमें हम लोग को वो जो डिफरेंस है वो हम लोग को रिकॉर्ड करना है. ओके, कौन सा डिफरेंस? सी, conversion cost was debited by 3,36,000 and here it is credited by 3,16,000. okay, so there is a more debit of 20,000. सी, कन्वर्जन कॉस्ट को हम लोग ने डेबिट किया था 3,36,000 से और उसको क्रेडिट किया 3,16,000 से. सो डेबिट अभी भी ज़्यादा है 20,000 से, तो उसको क्रेडिट करके हम लोग कैंसिल कर सकते हैं. सो इधर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट टू कन्वर्जन कॉस्ट अकाउंट. ओके, 20,000. ओके, being variance is recognized. ओके, अभी अगर आप लोग ने कंपेयर किया तो इसमें ट्रेडिशनल में 8 एंट्रीज आ रहा है क्योंकि हम लोग WIP का प्रोसेस इधर कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन बैकफ्लश में सिर्फ 5 एंट्रीज आ रहा है क्योंकि हम लोग ने इधर WIP का प्रोसेस स्किप किया है, उसको कंसिडर नहीं किया है. ओके, अभी ये जो बुक का आंसर है और हमारा आंसर है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है. फर्स्ट डिफरेंस किधर है? इधर अकाउंट पेएबल उन लोग ने लिखा है और हम लोग ने ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट लिखा है. रीज़न बिहाइंड इज अकाउंट पेएबल लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें कौन से अकाउंट्स है और इट मीन्स कौन से ओवरहेड है वो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग ने ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट लिखा है. ओके, सो हियर वी हैव रिटन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट बिकॉज वी हैव टू आइडेंटिफाई विच ओवरहेड्स आर written in this. Okay, we have to understand which overhead are written, so that's why we are writing overhead control account. That is not a major issue. Okay, major part is here in this entry. Okay, in this entry, in the book in the answer of book they have written WIP. The basic concept says that in case of just in time system and backflash accounting, there is no concept of WIP. Then also they are writing WIP. So I really don't know how from where they are getting this. Okay, so जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जीट का और ब्लैक फ्लैश अकाउंटिंग का, उसमें तो बोला है कि WIP ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है उन दोनों में. सो फिर भी ये जो जर्नल एंट्री है उसमें उन लोग ने WIP लिखा है. सो आई थिंक इट मे बी अ टाइपिंग मिस्टेक. ओके, सो कॉन्सेप्चुअली अगर देखा तो क्या होगा? सी, कन्वर्जन कॉस्ट इतना था, राइट. फिनिश गुड्स बनाते समय हम लोग ने क्या किया? मटेरियल इतना यूज़ किया और कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाइड कितना किया है? इतना, राइट. इसीलिए हम लोग ने कन्वर्जन कॉस्ट लिखा है. इधर हम लोग WIP अकॉर्डिंग टू मी तो नहीं लिख सकते, मेरे हिसाब से तो नहीं लिख सकते क्योंकि WIP का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है बैकफ्लश में और जस्टिन में. सो दैट्स वाई हम लोग ने इधर कन्वर्जन कॉस्ट कितना अप्लाई हुआ है वो जस्ट लिखा है, राइट. सो उसकी वजह से फिनिश गुड्स का अमाउंट हम लोग को मिला. सिर्फ ये तो एंट्री इजी है क्योंकि फिनिश गुड्स का ट्रांसफर हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को. और लास्ट एंट्री जो है उसमें भी उन्होंने लिखा है ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 20,000. ओके, अभी डिफरेंस हम लोग का किधर आ रहा है? सी, कन्वर्जन कॉस्ट हम लोग ने डेबिट किया था इतना, कन्वर्जन कॉस्ट हम लोग ने क्रेडिट किया था इतना. सो डिफरेंस किसमें आ रहा है? कन्वर्जन कॉस्ट में ही आ रहा है. सो दैट्स वाई हम लोग ने कन्वर्जन कॉस्ट इधर लिखा हुआ है. Okay, we are getting difference in conversion cost account, so that's why we are writing off that difference by crediting the conversion cost account by 20,000. So that's why we have credited this entry by conversion cost account 20,000. In the book they have credited overhead control account, so don't confuse due to that, just go logically. Okay, I have tried to explain you all this entry in detail. Okay, so here we have completed illustration number 7. If you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching, friends.